যে আমি হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করছি, এটা আমার উচিত হয়নি। আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়া উচিত। কি মরবো না কি জীবিত থাকবো? আপনি তো নিশ্চয় আল্লাহ বা ভগবান নন, তাই না? তো আপনি কেন বলবেন? যার পাশে কেউ থাকে না তার পাশে কে থাকে জানো? ওর আল্লাহ আর ভগবান। के सामने तो इसलिए मैं बताइए। क्षमा चाहूँगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता आप मुस्लिम हैं? हाँ, क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद। काफ़ी लोग जानते भी होंगे तो तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। সম্মানিত দর্শক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে একজন মুসলিম বোন সে কিভাবে হিন্দু হয়ে গেছে এবং সে কোন কারণে হিন্দু হয়েছে। দর্শক আপনারা দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। তার পাশাপাশি আপনাদেরকে দেখাবো আরেক মুসলিম ভাই, সেও কিন্তু হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে ইন্ডিয়ায় গিয়ে এবং সেই ইন্ডিয়ায় পণ্ডিতের হাতে গিয়ে কিন্তু সে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে। দর্শক এরকমই কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হচ্ছে। দর্শক আজকে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ দুইটা ভিডিও দেখাবো। দুইটা ভিডিওর দেখে আপনার মতামত নিচে কমেন্টস বক্সে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। দর্শক কথা না বলে চলুন সেই মূল ভিডিওটি এখন দেখে আসি। হ্যাঁ, একজন আমাকে কমেন্ট করেছে যে আমি হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করছি, এটা আমার উচিত হয়নি। আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়া উচিত। তো তোমরা যদি একজন মানুষ হয়ে আর একজন মানুষকে ভালোবাসতে না পারো, তাহলে সেটা তোমার ভুল, তাহলে সেটা তোমাদের ভুল, আমার নয়। আমার মনে ওর জন্য ভালোবাসা ছিল দেখেই আমি ওর জন্য এতটা এগিয়ে এসেছি। সে উপর আল্লাহ বা ভগবানের ইচ্ছে ছাড়া নাকি একটা গাছের পাতাও নড়ে না। তো মানুষই যদি সবটা ঠিক করে দেয় তাহলে উপর আল্লাহ বা ভগবান কিসের জন্যে? আমার রিলেশনটাও উপর আল্লাহ ভগবান দুজনে মিলেই ঠিক করেছে, তার জন্য এটা হয়েছে, না হলে এটা হতো না। আমার জীবনে আমি একজনকেই ছেলে হিসেবে একজনকেই ভালোবেসেছি আর তার সাথেই এখন সংসার করতেছি, তাকেই বিয়ে করেছি। তো এটা আমার মনে হয় না কোনো ভুল। কাউকে ভালোবেসে তাকে বিয়ে করাটা কোনো ভুল নয়। আর যদি বলো ধর্মের কথা, তো ধর্ম তো আমি চাইনি কখনো যে আমার বর মুসলিম হয়ে আমার বাড়িতে থাক, আমার বাপের বাড়ি। তার কে যে আমি গলায় দিয়ে দড়ি দিয়ে মরবো কি মরবো না কি জীবিত থাকবো? আপনি তো নিশ্চয় আল্লাহ বা ভগবান নন, তাই না? তো আপনি কেন বলবেন? যার পাশে কেউ থাকে না তার পাশে কে থাকে জানো? উপর আল্লাহ আর ভগবান। আমার পাশে উপর আল্লাহ আর ভগবান দুজনেই আছে, তাই আমি আজকে অনেক ভালো আছি। ঠিক আছে, অনেক বিপদ এসেছে, অনেক ঝড় এসেছে, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সব সময় উপর আল্লাহ ভগবান দুজনেই আমার পাশে ছিল। সব সময় কেউ না কেউ ভগবানের মতো বা আল্লাহর মতো এসে এমন করে সাহায্য করেছে যেন মনে হয় তাদেরকে উপর আল্লাহ বা ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছে। না হলে হয়তো আমরা বেঁচেই থাকতাম না। তারা অনেক ভালো শিক্ষা পেয়েছে আর আমি বা খারাপ শিক্ষা পেয়েছি, আমি বা ভালো না। তো তাদেরকে দেখে তো মনে হচ্ছে যে তারা অনেক ভালো আর ভালো শিক্ষা পেয়েছে, ভালো ঘরের ভালো, তারা অনেক ভালোভাবে কমেন্ট করতেছে। হয়তো বলতেছে যে আমি এটা ভুল করছি, কিন্তু ভালোভাবে লিখতেছে তো কমেন্টটা, এটাতেও অনেক খুশি লাগে। আমি কি করব বলো? আমার মনে কোনো জাতি হিংসা দেয়নি উপর আল্লাহ। আমার মনে এরকম কোনো ভাবনা চিন্তা আসে না যে আমি এক জাতি হয়ে অন্য জাতিকে হিংসা করব। এরকম না যে আমি মুসলমান ধর্মকে ঘৃণা করি বা হিংসা করি, তার জন্যই এরকম এই ধর্মে, কিন্তু এরকমটা না। তোমরা হাজার চেষ্টা করো, কিন্তু আমার মনে যদি সেরকম কোনো হিংসা বা কোনো এরকম না আসে যে জাতি হিংসা, আমি এক জাতি হয়ে আরেক জাতিকে হিংসা করব, তাহলে আমি কি করব বলো? আমাকে এরকম করেই বানিয়েছে ভগবান আল্লাহ, আর আমাকে এরকমই শিক্ষা দিয়েছে উপর আল্লাহ। তো আমি কি করব? তোমাদেরকে যেহেতু জ্ঞান বুদ্ধিটা উপর আল্লাহ দিয়েছে, আমাকেও তো উপর আল্লাহ দিয়েছে নাকি? প্রত্যেকটা মানুষকে উপর আল্লাহ বা ভগবানে তৈরি করে, আর দুজনের কিন্তু উপর আল্লাহ ভগবান দুজনের কিন্তু সমান ক্ষমতাই আছে। মনে হয় পাপী আর মুসলমানরাই সব ধার্মিক বা সব ভালো কাজ করে, আর হিন্দুগুলা
পাপ করতেছে, এরকম কেন? তোমাদের কমেন্ট পড়ে এরকমই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু আমার তো মনে হয় না এরকম। আমার মনে হয় মানুষের और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे है ना आपको मैंने बहुत आपकी कथाओं को सुनता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपकी कथाओं को सुनकर। और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी तो इसलिए मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता आप मुस्लिम हैं? हाँ, क्या नाम था आपका मेरा पहले? पहले जावेद नाम था, जावेद। काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। बिल्कुल। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई तब मैं सनातन में आया। जी। वैसे किसी ने मुझे या मैंने किसी को देख के सीखा या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम कहाँ अभी मैं अभी इतना डिप्रेशन में हूँ, पूछो मत। मुझे फ़ोन आ रहे हैं, फैमिली वालों के ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी अदर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा, पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगी हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए हैं तो हमारा मुंह मत देखियो तू, हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है, हमारी एक लड़की है उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं सास्ते छोड़ सकता हूँ पर मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किन को नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप सही रास्ते पर हैं। तो मैं एक चीज़, मेरा एक सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या? कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आप इन्हें धर्म बदल लिया है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। हाँ जी। वैसे देखो धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ, भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलो। नहीं, रस खान जी को उसी रूप में उसी लिबास में प्राप्त हुए थे भगवान। जब उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था, पर जैसे उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छूटने लग गया सब चीज़ों को देखकर, वो मन वॉमिटिंग सी आनी ये अपने आप होने लग गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता। आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है। पर अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ, आप अपनी माँ से बात करो कि माँ मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाया पर आपको पता है कि वो समाज को लेके चलना है उन्हें, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है। तो अब मैं क्या कर सकता, मैं ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ सकता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये भक्ति का रोग कब से लगा? मैं बहुत छोटा था। मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी नानी के घर पे हुई है। अच्छा। तो नानी के जाने के बाद मामा मामी दिल्ली लेकर आया, उन्होंने मुझे 11 साल की एज में काम पे लगा दिया। तो मुझे तो काम वाम का पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा रोता था। तो मेरे ख्याल 2012 एक साल बीत गया, समय ऐसा बीत जाता है और पता भी नहीं लगता और आदत पड़ जाती है उस चीज़ को झेलने की। तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, मतलब जैसे हम लोग ये आटा चावल वगैरह पैक करते हैं ना, तो पन्नी आया करती थी। तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी और उसमें छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। उन्होंने हाथ में मुरली रखी, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि कुछ टाइम बाद कि वो मुझे देख रहे हैं, वो कभी इशारे कर रहे हैं। तो मैं आंटी को बोलूँगा आंटी ये देखना, ये जो फ़ोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है। तो आंटी कह रही तो मतलब उन आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे बार बार कहती, मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ये ऐसे ही होगा। और मैं कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रहे कि मुझे भी भूख लगी है, मेरे को भी दे। तो मैं आधी रोटी निकाल कर और सब्जी देता था और भगवान जाने वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और फिर उसके बाद से इतना उससे प्रेम हो गया कि मैं उस चिट को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया, डेली ले जाता ले आता। फिर उसके बाद से जो मेरे मामा मुमा थे उनसे वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए कि तू ये क्या कर रहा है, ये है वो है जो भी हो। और उसके बाद से फिर मैं 13 साल का जब हुआ था मैंने घर को छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं लगता था। और मैं खुद कई बार सोचता हूँ तो भाई 13 साल की एज बहुत कम होती है और मैंने कैसे वो करा, वो समय ठाकुर जी तो पता नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है और ये वहीं से हुई है। किसी ने ना मुझे सिखाया, ना मैं जिस फैमिली में काम करता था वहाँ भी ऐसे नहीं कह सकते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्ति थी, वहाँ पे नॉर्मल भक्ति थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये मुझे कई लोगों की शिकायत है कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया गया है या वैसा किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं, किसी सनातन ने किसी ने भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं करा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं दोनों को लेके चला था, पर लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया तो मैंने সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী, আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলেন এবং আজকের এই ভিডিওটি থেকে আপনার কি মতামত অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানিয়ে দিবেন। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন সেই ভিডিওটি কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে এবং সেই মুসলিম বোনটি যে হিন্দু হয়েছে এবং সেই হিন্দু হয়ে কিন্তু কঠিন জবাব দিয়েছে। দর্শক এই বিষয়ে আপনার কি মতামত অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানিয়ে দিবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্তই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি আজকের এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।